اور اس کے تحت تیسری تقریر دعوت کے موضوع پر ہے، جسے فرمائیں گے جناب شیخ سہیل امیر صاحب، امیر مقامی جماعت اسلامی جلگاؤں، اور ان کو ان اشعار کے ساتھ میں آواز دینا چاہتا ہوں۔ انداز خسروی لے کر جوان درویش پیام حق سنا رہا ہے، انداز خسروی لے کر جوان درویش پیام حق سنا رہا ہے، زبان گل سے سومنات دل میں ہلچل مچا رہا ہے، دبیس نیندے جھنجھوڑتا ہے مجاہدوں کو جگا رہا ہے، دبیس نیندے جھنجھوڑتا ہے مجاہدوں کو جگا رہا ہے، خطیب امن عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے۔ جناب سہیل شیخ امیر صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم والمولا الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز جماعت کے مختلف سطحوں کے ذمہ داران، اس میں قابل احترام بزرگوں، امت کے نوجوانوں، بہت ہی پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں اور امت کی بیٹیوں، امت مسلمہ کی سرحد کے دور پر داخل ہو، اس محاذ پر چلی جائے جہاں سے وہ انسانیت کی امامت کرے۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ آج ملت اسلامیہ زبوں حالی کا پشیمانی کا شکار ہے؟ اس دنیا میں امت مسلمہ کی حیثیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مشنری امت کی حیثیت بنائی ہے۔ ہم اس پوری کائنات میں گلوبل لیول پر یونیورسل ہمارا جو امیج ہے وہ ایک با مقصد امت کا امیج ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کا نفاذ چاہتے ہیں۔ ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اللہ سے ناواقف ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھول چکے ہیں، ہم سب کی یہ جہد مسلسل ہے کہ ہم ہر حیثیت میں انہیں بھولا ہوا سبق یاد دلانا چاہتے ہیں۔ اس کام کو اقامت دین کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا قائم کرنا۔ اور اس عظیم الشان اقامت دین کے نصب العین کو ہم تمام لوگ دعوت دین کے ذریعے سے اس گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اقامت دین کا نصب العین دعوت دین کے ذریعے سے حاصل ہو جائے۔ اس کام کے لیے ہم نے مختلف حیثیتوں میں پورے بھارت کے طول و عرض میں کام کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، امت مسلمہ اس ملک میں آزاد بھارت میں 75 سالوں سے زیادہ زندگی گزار چکی ہے، لیکن اس بہت بڑے عرصے میں ہم نے یہاں کی عوام سے تمام چیزوں کو شیئر کیا۔ ہم نے لوگوں کو دعوت ولیمہ دیا، ہم نے لوگوں کو چھلے اور چھٹیوں کی دعوتیں دی، ہم نے لوگوں کو ولیموں کی دعوت دی، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کی حیثیت سے اسلام کی دعوت نہیں دے پائے۔ سارے لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں کو احترام سے جھک جھک کر قبول کرتے ہیں، مگر ہم اللہ کا دین دینے میں، اس کی دعوت دینے میں کہیں نہ کہیں بہت کمزور پڑ رہے ہیں، اور اس بات کا احساس مجھے بھی ہے اور آپ تمام کو بھی ضرور ہوگا۔ جب گفتگو ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل میں لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں سولوشن کے لیے، کووڈ-19 میں اس ریاست کے تتکالین چیف منسٹر کو یہ کہنا پڑا کہ میں شکر گزار ہوں اس امت کا، مسلمان قوم کا، جس نے بھوکے پیاسوں کو کھانا کھلایا، جس نے ننگوں کو کپڑے پہنائے، اور جن کے پاؤں میں دراریں پڑ رہی تھی، ایسے غریبوں کو چپلے پہنانے والی امت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جملہ وقت کے اس تتکالین چیف منسٹر نے
ओपन हाउस में लोगों के सामने रखा। लेकिन क्या उम्मत मुस्लिमा सिर्फ यही सोशल वर्क करेगी? जिस सोशल वर्क का मियर सोशल वर्क तो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम लोगों के मसाइल का हल जरूर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो, लेकिन मेरे भाइयों, इस इंसानियत की सबसे बड़ी समस्या, इसका सबसे बड़ा मसला अजीम यह है कि हम इस दुनिया में इंसानों को अल्लाह से वाकिफ करना चाहते हैं। अगर आपके सामने यहां के इंसानों का भूखमरी मसला है, हमें फिक्रमंद होना पड़ेगा। आप बड़े लुटे पिटे इंसानों की तरह 2023 में दौड़ते भागते दाखिल हो गए। पीछे मुड़कर देखते हैं तो जितने अय्याम, जितने बरस हमारे गुजर रहे हैं, हर साल में कुछ न कुछ ऐसे तमगे उम्मत मुस्लिमा को मनफी मिले हैं कि जिससे यह साबित हो रहा है कि हमारा मुस्तकबिल डार्क है। मगर खुदा की कसम, हमारा मुस्तकबिल डार्क नहीं है, हमारा मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में एक अजीम तरीन सल्तनत बनने जा रहे हैं, हम एक अजीम निजाम की कशमकश में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर इस मौजूद जमाने को आप मतलूब जमाना बनाना चाहते हैं, ये जुल्म और इस्तबदाद के दौर का इख्तिताम चाहते हैं, तो कुरान मुकद्दस में सूरतुल माइदा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अंडरलाइन कीजिए, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। इस बात को अंडरलाइन कीजिए अपने जहनों में। अल्लाह ने फरमाया कि ए रसूल, जो कुछ तुम पर नाजिल हुआ उसे पहुंचाइए, बलाग का काम करें। अगर आपने ये काम ना किया तो आपने अपनी रिसालत का हक अदा नहीं किया। कितने इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है इस अल्फाज में। और अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। याद रखो कि इंसानों से इस काम के नतीजे में, इस बलाग और तबलीग के नतीजे में अल्लाह ताला तुम्हें इंसानों से हिफाजत फरमाएगा। इस मुल्क में अगर हम तहफ्फुज़ चाहते हैं, हम सिक्योरिटी चाहते हैं, तो सिक्योरिटी मिन जानिबुल्लाह मिलेगी इस काम के साथ कि हम दावत और तबलीग का काम यहां के अवाम और खवास में करने वाले बने। मैं आपको एक बात सुनाता हूं। एक बड़ा जमाना आजाद भारत की तारीख में हमारा जमाना बीत चुका है। एक अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, जिसकी नोट हो जाती है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में, तो यह कहा गया कि मोर देन 40,000 राइट्स फसादात, 40,000 से ज्यादा फसादात इस मुल्क में हुए। उन फसादात में मुसलमानों का जानी नुकसान भी और माली नुकसान भी हुआ। कई मुसलमान, हजारों मुसलमानों को इस बुनियाद पर शहीद किया गया कि मुसलमान। मैं आपसे मेरे भाइयों, इस बड़े मजमे से आपसे पूछता हूं कि हजारों मुसलमान शहीद हो गए इस बुनियाद पर कि वो मुसलमान हैं। खुदा की कसम, अगर इसका 10% हिस्सा अल्लाह के रास्ते में दावत देते देते शहीद होता तो भारत के हर गोशे से कलमा तौहीद की सदाएं बुलंद हो जाती। हम शहीद होते रहे, हम अपना मातम बनाते रहे, हमने अपनी सफों को, उजड़ी हुई सफों को सीधी करना चाहा, मगर हमने एक अजीम तरीके से दावत को मूवमेंट नहीं बना पाए, दावत को मुहिम नहीं बना पाए। मेरे अजीज भाई, कुरान मुकद्दस का मुताला कीजिए तो मालूम यह होता है कि हर नबी अपनी कौम को बुलाता है तो अजनबियत के साथ नहीं बल्कि अपनायत से बुलाता है। कुरान ने तस्करा किया, वो कहते हैं, हर नबी कहते हैं, या कौमी, ऐ मेरी कौम, मैं तुझे पुकारता हूं। इस मुल्क और इस मुल्क में, भारत में, यहां की कौम से भी हमें या कौमी कहना पड़ेगा। यहां के जो गैर मुसलमान लोग हैं वो इस मुल्क में हमारे दुश्मन नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से कुरान और सुन्नत की रोशनी में कह रहा हूं, ये हमारे दुश्मन नहीं है। अल्लाह ताला ने इन्हें अपना भाई बनाया है। हम मोहब्बत का दामन उस्तवार करें, बढ़ाए मोहब्बत का हाथ, फिर आप देखें कि जमीन की मिट्टी में मोहब्बत भी शदीद है और नफरतें भी शदीद है। हम अगर नफरत के माहौल से गुजर रहे हैं तो इंशाल्लाह आने वाला कल मोहब्बत का कल जरूर होगा। मेरे भाइयों, इस मुल्क के अवाम के साथ हमारे रिलेशंस है, हमारा समाजी ताल्लुक यहां के लोगों के गैर मुसलमान भाइयों के साथ है, हमारे माशी ताल्लुकात है, हमारे तिजारती ताल्लुकात है, वो हमारे पड़ोसी हैं, मगर ये ताल्लुकात हमारे दावती ताल्लुकात नहीं बन पाए। हर खास आम इस मजलिस का बैठा हुआ इंसान इस टेंट से निकलने से पहले
समीम कल्ब से अल्लाह से ये वादा करे कि इंशाअल्लाह ताला हम हर खास व आम को ऐ खुदा तेरे दीन की दावत जरूर देंगे इंशाअल्लाह। जो नाई गैर मुसलमान भाई आपकी कटिंग बनाता है आप उसको भी दावत दीजिए। जिस भाई से आप सब्जियां खरीदते हैं उसे भी इस्लाम की दावत दीजिए। जो नौकर आपके घर में नौकरी करते हैं उन्हें भी इस्लाम की दावत दीजिए। हर हैसियत में इस्लाम की दावत दीजिए। आने वाला कल वो मुहिब्बान इस्लाम का कल इंशाअल्लाह हो जाएगा। मेरे भाइयों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, यहां की अवाम को हमें आज बताना होगा 2023 में कि ऐ यहां के गैर मुस्लिम मेरे बिरादरान वतन दोस्तों, अल्लाह ने एक अमानत हमारे पास दी है। वो अमानत हम उसके अमीन हैं और वो तोहफा सिर्फ आपके लिए वो इस्लाम का तोहफा है। हम एक बात, ये एक सुन्नत से वाकिफ है, बैहकी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठा खाते थे। यह हदीस के तमाम लोग हाफिज हैं, तमाम लोग इस हदीस पर अमल भी करते हैं। जब भी मीठा खाते हैं, अभी भी हमने मीठा खाया तो मैं अपने पड़ोस में भी सुन रहा था कि भाई सुन्नत अदा कर लीजिए। किया भाई, आपने भी सुन्नत अदा की? नहीं किए। मैं आपसे सुना रहा हूं ये बात कि बैहकी की हदीस में कहा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठकर मीठा खाते थे, तो मीठा खाइए। मगर बुखारी की हदीस में यह है कि जिस तरह घर में बैठकर मीठा खाया गया, ताइफ में जाकर लोगों के पत्थर खाए गए। मीठा खाना भी सुन्नत है और अल्लाह के रास्ते में पत्थर खाना भी सुन्नत है। हम इस सुन्नत का कैसे इनकार कर सकते हैं? मगर मेरे भाइयों, जो कुछ मेरा दावती मैदान का छोटा सा तजुर्बा रहा है, मैं आपको साबित कर सकता हूं कि पत्थर खाने की सुन्नत शायद इस 2023 में भारत में आप अदा नहीं कर पाएंगे। जिन गैर मुस्लिम भाइयों को आप इस्लाम की दावत देते हैं, वो लोग आपको चाय पिलाते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं, आपका बुके से इस्तकबाल करते हैं। दुरूद व सलाम हो उस मोहसिन आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर जिसने पत्थर खाकर लोगों को फूल बरसाए। आज हम पर लोग फूल की पत्तियां बिखेर रहे हैं, मगर मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त हो चुका है। मेरे अजीज भाइयों, दावत का मकसद हम पर बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। आपके दरमियान ऐसे कुछ लोग भी जो मुस्लिमों की तादाद बढ़ाना नहीं से हम इंसानों को जहन्नुम से आजाद करना चाहते हैं। जब ये विजन किसी आपके गैर मुसलमान भाई पर वाज़ेह हो जाएगा, वो आपका इंतहाई गर्विदा होगा और वो समझ जाएगा कि ये मेरे फलाह का एक बेहतरीन रास्ता है जो मुझे दिया जा रहा है। मेरे भाइयों, दावत दीन जो इस मुल्क में दिया जा रहा है, वो हम अमन के क़याम के लिए, शांति की स्थापना के लिए दावत का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक वाकया सुना रहा हूं। मैं तमिलनाडु के सलम्स में सुअर चराया करता था। लोग मुझसे बात नहीं करते थे, मगर हमारी पूरी फैमिली ने अल्लाह के दीन को कबूल किया। वो कहते हैं, रोते हुए कहते हैं कि जिस कौम को, जिसके लोगों को लोग बात करना बर्दाश्त नहीं करते थे, आज अल्लाह ताला ने हमें ऐसा स्टेटस दिया है कि इस कौम ने हमें अपना इमाम बना लिया है। इंशाअल्लाह ताला ये वाकयात आपके आसपास भी जरूर होंगे। बशारत, फोरकास्टिंग दे रहे हैं, अनकरीब एक वक्त आएगा कि वराइतना से यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग फौज दर फौज, कबीले के कबीले, खानदान की खानदान और ग्रुप के ग्रुप इस्लाम में दाखिल होंगे। और वो मंजर ये है कि इस मामले में हम अपना कंट्रीब्यूशन तलाश करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, भारत की जमीन में मौक़ों की दुनिया है। ये भारत की जमीन मौक़ों की दुनिया है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मौसम अच्छा खुतबा दिया जो 20 मिनट्स पर इस्तवार है। आपने खुतबा दिया तो 1 लाख से जायद बंदगान रब वहां पर सहाबे कराम मौजूद है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग मजमे को सुन रहे हैं। अगर ये 5000 का मजमा है तो देखिए अपने आसपास कितना बड़ा मजमा है। 1 लाख का मजमा आखिर उस आलम अरब से कहां गायब हो गया? जन्नतुल बकी में तो चंद सैकड़ों सहाबा की कब्रें मिलती हैं। मेरे अजीज भाइयों, कहां गायब हो गए? अल्लाह के मुबारक नफूस सारी दुनिया में फैल गए। जिन्होंने ये मालूम था कि हरम में नमाज पढ़ने पर इतनी नमाजों का सवाब मिलता है, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने वाले को इतनी नमाजों का सवाब मिलता है, बावजूद इसके वो कुफ्र के दयार में फैले, वहीं पर शहीद हो गए और अल्लाह के दीन को पहुंचाने की कोशिश की। मिल्लत इस्लामिया का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। किसी शायर ने खूब कहा था, वो मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है,
وہ کہتے ہیں کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول. آج 2023 میں اگر آپ کو ماحول خراب لگ رہا ہے تو سنیے، میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول، اس لیے کہ خزاں کے بعد کا عالم بہار ہوتا ہے. بہار کا دور آنے والا ہے. ہم اپنا کنٹریبیوشن تلاش کریں. یہاں سے لوٹنے کے بعد ہر انسان داعی بنے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں اللہ کے نظام کو ہم بحسن خوبی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.